بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بتایا تھا کہ اس سبق میں موصوف صفت سکھلا رہے ہیں کہ موصوف کسے کہتے ہیں، صفت کسے کہتے ہیں، اور دونوں میں کن کن چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، یعنی کن کن چیزوں میں دونوں سیم ہونا ضروری ہے، وہ بتلا رہے تھے۔ اب ایک تمرین اوپر گزر گیا، دوسرا تمرین یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ضع فی الفراغ فی الجمل الآتیتی نعتا مناسبا، یعنی آنے والے جملوں کے خالی جگہوں میں مناسب صفت کو لگاؤ، یعنی ختیجۃ طالبۃ، تو طالبۃ یہ موصوف ہے، اب ہمیں صفت لانا ہے۔ جیسے خدیجۃ طالبۃ مجتہدۃ، خدیجہ محنتی طالبہ ہے، تو طالبۃ تو تھا پہلے سے یہاں، تو ہم مجتہدۃ یہ صفت کو لگائے ہیں۔ ایسے ہی مکمل پورے جملوں میں لگانا ہے۔ جیسے خالد تاجر غنی، خالد مالدار تاجر ہے۔ العربیۃ لغۃ سہلۃ، عربی آسان زبان ہے۔ العصفور طائر جمیل، چڑیا خوبصورت پرندہ ہے۔ التفاح فاکہۃ لذیذۃ، سیب مزیدار میوہ ہے۔ انا مدرس قدیم، میں پرانا استاذ ہوں۔ محمد طبیب شہیر، محمد مشہور ڈاکٹر ہے۔ الانگلیزیۃ لغۃ صعبۃ، انگلش مشکل زبان ہے۔ اانت طالب جدید، القاہرۃ مدینۃ مشہورۃ۔ اب یہاں تیسرے تمرین میں کیا کرنا ہے، تو یہ صفت دے دیے ہیں، ہمیں موصوف لانا ہے۔ جیسے العربیۃ لغۃ سہلۃ، تو لغۃ موصوف لگائے۔ انا مدرس قدیم، عمار تاجر غنی، هذا الباب مکسور، فیصل طالب کسلان۔ کسلانو کہتے ہیں کاہل کو، جوعانو کہتے ہیں بھوکے کو، عطشانو کہتے ہیں پیاسے کو، غضبانو کہتے ہیں غصہ کو، اور ملآنو کہتے ہیں بھرے ہوئے کو۔ انا جوعان، میں بھوکا ہوں۔ انت جوعان، کیا تو بھوکا ہے؟ لا انا عطشان، نہیں میں پیاسا ہوں۔ لماذا المدرس غضبان اليوم، آج استاذ کیوں غصہ ہے؟ الکوب ملآن، پیالہ بھرا ہوا ہے۔ تو یہاں اب جیسا پہلے دیا کرتے تھے، تو یہ 90 سبق میں اب تک جو نئے الفاظ آئے ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر کے بتلا رہے ہیں۔ اللغۃ کے معنی آتا ہے زبان، شہیر کا معنی آتا ہے مشہور، المدینۃ کے معنی آتا ہے شہر، طائر کا معنی آتا ہے پرندہ، الیوم کا معنی آتا ہے آج، کسلان کا معنی آتا ہے کاہل سست، جوعان کا معنی آتا ہے بھوکا، عطشان کے معنی آتا ہے پیاسا، ملآن کا معنی آتا ہے بھرا ہوا، غضبان کا معنی آتا ہے غصہ، عصفور کے معنی چڑیا۔ اب 90 سبق کا ایک پارٹ تو ختم ہو گیا، اب دوسرا پارٹ شروع کر رہے ہیں۔ این المدرس، استاذ کہاں ہے؟ هو فی الفصل، وہ درسگاہ میں ہے۔ وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ، نئے استاذ کہاں ہے؟ هو عند المدیر، وہ محتمم کے پاس ہے۔
ऐन तालिब الجدید, नया तालिब इल्म कहाँ है, ज़हब इलल मकतबती, वो कुतुब खाने की तरफ गया है, लाइब्रेरी की तरफ गया है। मन ज़ालिका अर्रजुलु तवील अल्लज़ी खरजल आन मिनल मदरसा, वो लंबा आदमी कौन है जो अभी मदरसे से निकला। हुवल मुदीरुल जदीद, वो नया मोहतमिम है, नया प्रिंसिपल है। वमिनल वलदुस सगीरुल्लज़ी खरजल आन मिनल फस्ल, वो छोटा लड़का कौन है जो अभी दरसगाह से निकला। तो यहाँ देखो दोनों जुमले में आया अल्लज़ी अल्लज़ी। तो यहाँ रुक कर एक समझना है कि अरबी में एक मौसूल आता है और एक सिला आता है। मौसूल का मतलब क्या है, बात एक जुमला बोलते हैं लेकिन उससे बात मुकम्मल समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, अल्लज़ी मुज़क्कर के लिए, अल्लती मुअन्नस के लिए, इसी तरह मुज़क्कर वाहिद के लिए अल्लज़ी, मुअन्नस वाहिद के लिए अल्लती, मुज़क्कर तस्निया के लिए अल्लज़ानी, मुअन्नस तस्निया के लिए अल्लतानी, और मुज़क्कर जमा के लिए अल्लाई और मुअन्नस जमा के लिए अल्लाती। ये ला कर फिर एक दोबारा जुमला लाते हैं, यानी पहले एक जुमला लाते हैं, उससे पूरी बात समझ में नहीं आती है तो उस बात को मुकम्मल करने के लिए एक दूसरा जुमला लाते हैं। इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में इसमें मौसूल को लाते हैं, और इसमें मौसूल कौन है, अल्लज़ी अल्लज़ानी अल्लज़ीना, अल्लती अल्लतानी अल्लाती अल्लाई, इनको क्या कहते हैं, इसमें मौसूल कहते हैं। तो क्या ज़रूरी है अब, तो कहते हैं कि सिला जो होगा, सिला बोलते हैं जो अल्लज़ी के बाद आता है, मौसूल बोलते हैं जो अल्लज़ी से पहले होता है। तो पहले वाले जुमले दूसरे वाले जुमले को पहले वाले से जोड़कर पूरे जुमले को मुकम्मल करते हैं। तो दूसरे वाले जुमले को पहले वाले से जोड़ने के लिए एक शर्त यह है कि उसमें ज़मीर होना चाहिए। ज़मीर का मतलब जो ऊपर बतलाया था कि अना, हुआ, हुमा, यानी मुकम्मल ज़मीरें आती हैं। अब हुआ ये मुज़क्कर गायब को बतलाता है, हुमा ये तस्निया मुज़क्कर को बतलाता है, हुम ये जमा मुज़क्कर को बतलाता है, हिया ये वाहिद मुअन्नस को बतलाता है, गायब मुअन्नस को, हुमा ये भी गायब तस्निया, गायब मुअन्नस तस्निया को बतलाता है, हुन्ना ये गायब मुअन्नस जमा को बतलाता है। इसी तरह अंता ये वाहिद मुज़क्कर को बतलाता है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर को बतलाता है। अंतुमा तस्निया मुज़क्कर हाजिर को बतलाता है, अंतुम जमा मुज़क्कर हाजिर को बतलाने के लिए आता है। अंती ये वाहिद मुअन्नस हाजिर के लिए आता है, अंतुमा तस्निया मुअन्नस हाजिर के लिए, अंतुन्ना जमा मुअन्नस हाजिर के लिए, अना वाहिद मुतकल्लिम के लिए, नहनु जमा मुतकल्लिम के लिए। इन तमाम को हुआ से लेकर नहनु तक 14 है, इनको ज़मीरें कहते हैं। ये ज़मीरें जो हैं कभी ज़ाहिर होते हैं, कभी छुपे हुए रहते हैं। तो माजी जो यानी फ़ेल में 3 किस्में हैं, एक माजी, एक मुज़ारे, एक अम्र। तो माजी कहते हैं वो फ़ेल जो गुज़रा हुआ ज़माना बताए, यानी वो फ़ेल जो गुज़रे हुए किसी काम को बतलाता है, उस फ़ेल को फ़ेल माजी बोलते हैं। और फ़ेल माजी के भी 14 सेगे आते हैं, और इन तमाम सेगों में ज़मीरें छुपे हुए रहते हैं। तो यहाँ भी देखो असल में मन ज़ालिकर रजुल तवीलु ये मौसूल है, खरजल आन मिनल मदरसा ये सिला है। तो इसको पहले वाले से जोड़ने के लिए बीच में अल्लज़ी आया है, और साथ ही साथ खरजा में हुआ है जो अर रजुल की तरफ लौट रहा है। ये ज़रूरी है सिला में एक ज़मीर हो जो मौसूल के मुताबिक हो। तो इस दूसरे पार्ट में मौसूल सिला को समझा रहे हैं। समझ में आ गई बात। अब आगे, लिमन तिलका सय्यारतुल जमीलतु, वो खूबसूरत कार किसके लिए है, हिया लिल मुदीरिल जदीदी, वो नए मुहतमिम के लिए है। लिमन हादल किताबुल कबीरु, ये बड़ी किताब किसके लिए है। अहुवा लिल मुदर्रिस, क्या वो उस्ताद के लिए है। ला
हुवा लित्तालिब जदीद, वो नए तालिब इल्म के लिए है। ऐन अल मिलअक़तु सगीरतु, छोटा चमचा कहाँ है। हिया फिल कूबी, वो गिलास में है, प्याले में है। ऐन अल कुर्सीयुल मकसूरू, टूटी हुई कुर्सी कहाँ है। हुआ हुना का, वो वहाँ है। बस आज यहाँ तक रहने दो, इंशाअल्लाह।